नॉर्थ किंग के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अहमदाबाद नवरंगपुरा के सुप्रसिद्ध सरदार पटेल स्टेडियम से एक बार फिर आप सभी दर्शकों का इंडियन प्रीमियर कॉर्पोरेट लीग सीजन 5 में हार्दिक स्वागत है। तो एक और दूसरा मुकाबला आईपीसीएल सीजन 5 का शुरू होने जा रहा है नॉर्थ किंग और साउथ ईगल्स के बीच में। इंडियन तो टॉस काफ़ी महत्वपूर्ण है सुधीर कि वही विकेट है और जहां से बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। अब तक हमने देखा है कि गेंदबाज हावी रहा है बल्लेबाजों पर और जी हाँ, इस समय साउथ ईगल्स के गेंदबाज के पास में अच्छा मौका है सुधीर, कम से कम टोटल पर नॉर्थ किंग को रोका जाए। तो देखना है कि आज दूसरी मैच में क्या होता है, लेकिन जो विकेट के हैं वो तेज गेंदबाज और कई जगह पर विकेट टूट गया है, वहाँ से स्पिन जो गेंदबाज है उन्हें भी अच्छी मदद मिल सकती है। तो नॉर्थ किंग के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज इस समय बीच मैदान पर जाते हुए। The two openers making their way at crease and South Eagles openers. And Deepak, when they have decided to bat first, that means they are having a specific plan to set a target to the North Kings team. And it would be interesting that during the first power play, yes, here is the North Kings lineup: Ritesh, Amandeep, Praveen, Rohit, Sumit, Sri, Basim, Akash, Vinay, Sachin, Angat, Arvind and Junaid MH. And that's why we can see that the South Eagles team: Sai, Prashant, Praveen, Praveen D, Naveen E, Naveen, Srinu, Mahesh, Anu Jos, Akash, Sudesh and Ashok. So the two batting lineups, and we are going to have an interesting duel out there in the middle. The second match between North Kings and South Eagles. And here the first ball coming up of the second match between North Kings and South Eagles. And now the first ball of the match, second match. Straying down the leg side, called wide and 4 runs. Absolutely straying down the leg side and off the target this time. You have to maintain your good line and length in order to not give away those extra runs and that benefit of an additional delivery to score as far as the batsmen are concerned. Just one slip in the closing position, a short extra cover, a full toss. And the batsman did not expect this, Deepak, and he was surprised to see the full toss after straying the first delivery down the leg side, the second one a high full toss for which he was not prepared. जी हाँ, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही गेंद आई शरीर पर। सुधीर, नॉर्थ किंग की बात करें, पिछले वर्ष आईपीसीएल सीजन 4 में उन्होंने 3 मैच खेले थे, वो तीनों मैच जीते थे। तो अच्छा दबदबा रहा है पिछले सीजन से अब तक का नॉर्थ किंग का। और साउथ ईगल की बात करें, उन्होंने 3 मैच खेले थे, 1 मैच मात्र जीता था उन्होंने। नॉर्थ किंग सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन इंडियन ब्लूज़ के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर अच्छा सफ़र रहा है पिछले 2 सालों से नॉर्थ किंग का। और देखना है कि आईपीसीएल सीजन 5 में नॉर्थ किंग किस प्रकार शुभारंभ करती है अपने इस नए एडिशन का। लेकिन कम से कम 130-140 रन बनने बेहद ज़रूरी है इस सरफेस पर, जहां पर गेंदबाज को मदद मिल रही है। तो इतना आसान काम नहीं रहेगा बल्लेबाजों के लिए। ओह, ये बहुत ही बढ़िया टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही गेंद नीचे अंदर की तरफ आई। इन स्विंग गेंद, और ऐसी गेंद को खेलना इतना आसान नहीं होता है। सुधीर, क्या कहेंगे इस गेंद के बारे में आप?
pitch outside the off stump. The seam movement and only the height was not in favor of the bowler because it hit above the knee roll, and that's why there was no question of an LBW decision. Again, a surprise element in the form of a full toss. The batsman taking the advantage by making the deflection to square leg for a couple of more runs. गेंद सीधे शरीर पर, क्या ये गिफ्ट कही जाएगी गेंदबाज की ओर से? अगर थोड़ी सी और ऊंची हो तो उसे ओवर द वेस्ट साइड नो बॉल करार दिया जाता है। सुधीर, इसका भी ध्यान रखना होगा गेंदबाजों को। Once again staying down the leg side. He's just trying to bowl from the center of the bowling crease, and 4 runs. So 8 without loss, and we are in the first over. Staying down the leg side, try to make the deflection to fine leg, and 4 runs. So very quickly the scoreboard now advancing to 13 for no loss. The conditions indeed ideal for the batsmen to play their shots, and for the bowlers the wind condition. It was a wide one once more. Not finding his rhythm, he is definitely struggling, and as we were talking to our viewers about the very strong breeze which is blowing, and he's bowling into the breeze, that means he will have to put some extra efforts to get that rhythm. जी हाँ, गेंद में विविधता लाने के प्रयास में कई बार गलतियां की है गेंदबाज ने, लेकिन काफ़ी बढ़िया कमबैक, बढ़िया वापसी कही जाएगी। कुल मिलाकर नॉर्थ किंग के लिए अच्छी शुरुआत, 14 रन बन चुके हैं 5 गेंदों पर। ऐसा होता है अक्सर कि आप गेंद में विविधता लाने के प्रयास में, गेंद की लंबाई को कम ज़्यादा करने के प्रयास में ऐसी गलती कर बैठते हैं। फिलहाल ये ओवर पिच गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के बीच में से, लेकिन गेंद रुक कर आई, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और 1 रन इस बीच। तो अतिरिक्त की संख्या ज़्यादा है, रितेश 3 पर है, विनय 1 पर है, और 1 ओवर के बाद में 15 रन, काफ़ी बढ़िया शुरुआत कही जाएगी। अच्छा योगदान रहा है इन 15 रनों में गेंदबाज के द्वारा। सुधीर, So first over 15 runs, but the contributing factor was the line, particularly from the bowler, who strayed down the leg side at least on 3 occasions and struggling to find his rhythm. But in between we could see that he was in a position to produce that one, which was pitched in line of the stumps. Maybe perhaps this might be his strategy, that to bowl the ones which were wide outside the line of the leg stump, and then suddenly to concentrate on the right line and deceive the batsman. It's quite interesting that 6-7 men on the offside and only 2 on the on, with 2 fielders in the closing position in the slip area. जी हाँ, काफ़ी दिलचस्प फील्डिंग पोजीशन, 2 स्लिप। लेकिन पिछले ओवर में ज़्यादातर गेंदबाजी है वो लेग स्टम्प्स के इर्द गिर्द रही थी। तो यहाँ पर अब ये चुनौती होती है गेंदबाज के लिए कि 7 फील्डर को रखा है ऑफ साइड पर, तो आपको ऑफ साइड गेंदबाजी करनी होगी। तो देखना है कि इस ओवर में किस प्रकार रहता है। हालांकि पहली गेंद ऑफ स्टम्प के इर्द गिर्द 2 स्लिप है, एक थर्ड में थोड़ा सा वाइड है, एक शॉर्ट कवर पॉइंट, एक फील्डर गली और पॉइंट के बीच में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ। पावर प्ले चल रहा है, इसलिए सिर्फ 2 ही फील्डर है। और इस समय खतरनाक, लेकिन इसे कहते हैं किस्मत का साथ होना। और सुधीर, किस्मत अगर आपके साथ में हो तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसका उत्तम उदाहरण, बिल्कुल गेंद हाथ में गेंदबाज की और वहाँ पर गेंद छूट गई। फील्डिंग काफ़ी बढ़िया और ये बल्लेबाज काफ़ी दूर, आसान रनआउट का मौका था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और बल्लेबाज अपने घर में सही सलामत। An opportunity at both the ends of the wicket, because
On the second occasion, the batsman was absolutely far, nowhere in the area to be in as far as the question of returning to the crease is concerned. So a golden opportunity lost of a dismissal. या बल्लेबाज ने तो मन में सोच लिया होगा ये मैं तो गया, लेकिन सही सलामत है क्रीज में। ओह, आगे अगर पहले लंबा शॉट खेलने का प्रयास मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन बाद में देखा गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल ले रही है, ऑप्शन के बाहर की तरफ निकल रही है, बल्ले को तिरछा किया। ये बहुत ही बढ़िया सूझबूझ कही जाएगी बल्लेबाज के द्वारा। 5 पर पहुंचे हैं रितेश और 2 रन पर विनय। 17 रन नॉर्थ किंग। विनय स्ट्राइक पर। सरी से काफी दूर से खेला और लाजवाब फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। अगर गेंद को नहीं रोका होता सुधीर तो निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री के आसपास घूमती हुई नजर आ सकती थी। And Deepak, this reminds one of a brilliant piece of fielding that one in good old days you used to come across, like Jonty Rhodes or Colin Bland, the absolutely brilliant fielders from the South African side. फिलहाल रूम का कोई मौका नहीं, स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद में सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 ओवर के बाद 16 रन, 8 रन प्रति ओवर का यहाँ पर रफ्तार नॉर्थ किंग के लिए। 3 पर विनय, 5 पर रितेश, और यही रन रेट अगर मेंटेन रहता है तो प्रोजेक्टेड स्कोर हम गेस कर सकते हैं 150 से ऊपर। सुधीर, North Kings won the toss, decided to bat first, and after 2 overs, none for 18. British is on 5. Vinay on strike is batting with 3 runs to his credit. And during the first 2 overs, we haven't seen an attempt by the batsman to go for the lofted shots, even though the power play is on, with only 2 fielders outside the 30-yard circle. And I think perhaps it might be a part of this strategy on the part of the bowlers to bowl a little wide of the stumps and then slowly coming back to the target to produce a delivery just in line of the stumps, and that's why keeping the batsman in a state of illusion. There is going to be a bowling change. Praveen has been brought into the attack. And Vinay is on strike. They are employing the same strategy as we had seen in the first match, when Indian Cobras, they used to feed the deliveries in the initial overs of the first power play, pitching it very wide outside the line of the off stump, inducing the batsman to go for the shots in the squarish position on the offside. And thus, once their mindset is set in that fashion, then to produce a ball in line of the stumps. जी हाँ, बिल्कुल सही सुधीर। और फिलहाल ये गेंद मिडल और लेग पर, ऑफ साइड पर गेंदबाजी आप अगर करते हैं सुधीर, तो बल्लेबाज को खेलने के लिए टाइमिंग चाहिए, फुटवर्क बेहतरीन चाहिए, तो ही जाकर आप ऑफ साइड पर स्ट्रोक बना सकते हैं। ऑन साइड पर अगर गेंद हो, आप उसे थोड़ा सा भी डायरेक्ट करते हैं तो गेंद बाउंड्री के आसपास पहुंच सकती है। तो ये ऑफ साइड अटैक जो होता है वो काफ़ी सुरक्षित माना जाता है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। 20 रन, दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान पर। वो अच्छी बॉल एक बार फिर, लगातार दूसरी बार मिडल और लेग पर ये गेंद, हालांकि इसमें ज़्यादा गति नहीं थी, विकेट की ठीक लाइन में, और सुरक्षित खेला उसे ऑन साइड पर नॉर्थ किंग। 5 रन पर रितेश, विनय 4 पर, अतिरिक्त की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ओ बढ़िया बॉल, इस समय बिल्कुल धीमी गति के साथ बल्लेबाज समझ नहीं पाए, उसे धीरे से दिशा देना चाहते थे थर्डमैन की, और लेकिन कोई मूवमेंट नहीं था, गेंद तक नहीं पहुंचे। अब शरीर से काफ़ी दूर से, प्लेड अवे फ्रॉम द बॉडी आपकी भाषा में सुधीर, तो ये इतना आसान नहीं होता बल्लेबाज के लिए। गेंद तक कम से कम पहुंचना आपके लिए बेहद ज़रूरी, आप चाहे ऑन साइड पर खेलना चाहे या ऑफ साइड पर।
ओ फिलहाल ये गेंद बढ़िया और बहुत ही खूबसूरती के साथ में उसे जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया सूझबूझ कही जाएगी, क्योंकि दो स्लिप है, अगर छेड़खानी करते बल्ले का एज लगने की संभावना वहाँ पर थी, इसलिए जाने दिया उसे रितेश ने। बहुत ही बढ़िया। Taking the advantage of the gap existing behind the wicket and getting a single. After 3 overs, none for 21, and 7 runs per over is the present run rate as far as North Kings are concerned. A good beginning, reasonably good one, but however unable to take the advantage of the field restrictions, as this is the first power play on and only 2 fielders are allowed to field outside the 30-yard circle. And let us see whether in the 4th over there is going to be an attempt by the batsman to go for the lofted shots. तो फिलहाल इस समय गेंद लेग स्टंप के बाहर, लेकिन बल्ले को तिरछा करते हुए खेला उसे ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन काफी इत्मीनान के साथ। बैट से इतने ज़्यादा रन नहीं आए हैं, लेकिन रन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं पावर प्ले में। गेंदबाजों का अच्छा योगदान रहा है साउथ ईगल्स के। साई गेंदबाज बहुत ही बढ़िया गेंद। इस मैच में देखा खास तौर पर गेंद ज़्यादा नीचे रह रही है सुधीर। Yes, it has shown this tendency that the ball is keeping very low, and that's how the batsman has to be careful while negotiating the one which is pitched in 9 of the stumps. Just a little bit of seam movement was found on that occasion, and there was total lack of footwork on the part of the batsman. That's it, you can say it. And also going for the shot on the offside, but lucky that he didn't get a tickle. Right on target this time, on the onside, and a single. None for 23. ऑफ स्टंप के बाहर सीधी गेंद, कोई छिड़काने नहीं। बल्लेबाज जानते हैं कि रन रेट काफ़ी बढ़िया चल रहा है और बिना मेहनत के रन विपक्षी टीम दे रही है, तो भला गेंद को क्यों छेड़छाड़ किया जाए, क्योंकि 2 स्लिप है वहाँ पर। 23 रन बिना किसी नुकसान के। नॉर्थ किंग टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई, एक बार फिर उसे जाने दिया। इस समय पिछले गेंद के मुकाबले गेंद बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर थी और कुल मिलाकर 4 ओवर के बाद 23 रन 2 विकेट। सुधीर सिर्फ 2 रन आए इस ओवर में, काफ़ी बढ़िया वापसी कही जाएगी साउथ ईगल्स के द्वारा। और अभी भी मौका है, यहाँ से भी अगर इसी प्रकार 2 या 3 रन देते हुए आप 10-15 ओवर तक गेंदबाजी करते हैं तो नॉर्थ किंग पर पकड़ बना सकते हैं। तो मौका अभी भी है यहाँ पर साउथ ईगल्स के पास। In the last over, Deepak, we have seen Ritesh shouldering his arms outside the line of the off stump. It gives a clear indication that he is not going to throw away his wicket. He is not going to attempt any injudicious shots, and at the same time, he would like to score the runs as and when they are available to him. It means that the batsman at the other end, at the crease, he has to go for some calculated risks and trying to get some quick runs. 12 रन सिर्फ बैट से बने हैं, 11 रन अतिरिक्त, कुल मिलाकर 23 रन। तो मिस्टर एक्स्ट्रा टॉप स्कोरर अब तक नॉर्थ किंग के लिए। Vinay is on strike. We are in the 5th over. This would be the last
over of the first power play. ओ बहुत ही बढ़िया गेंद मिडल और ऑफ पर गेंद ने हम पिछले 2-3 ओवर से देख रहे हैं कि यहाँ पर गेंद में उछाल ज़्यादा नहीं मिल रहा है। कभी कभी अचानक गेंद उछाल लेती है जब गेंदबाज कंधे का इस्तेमाल करता है, अन्यथा अगर आप गेंद को छोड़ देते हैं तो गेंद विकेट की लाइन में, विकेट की हाइट में नहीं आ रही है। एक खतरनाक बात हो सकती है बल्लेबाज के लिए। और ऐसी गेंदों पर अगर आप गेंद तक पहुँचे, फुटवर्क आपका बेहतरीन हो, गैप ढूंढने में अगर कामयाब होते हैं तो ही जाकर आप बढ़िया स्ट्रोक बना सकते हैं, रन बना सकते हैं तेजी से। अन्यथा इस प्रकार, इस कंडीशन पर ये बैट्समैन के लिए बहुत ही कड़ी अग्नि परीक्षा कही जाएगी। सुधीर? Yes, on the pitch like this, you have to balance everything. The state of the pitch, the condition of the match, and of your team especially. It seems that now Vinay has also gone back into his shell, because this would mean that the pressure would go on mounting, because when you are in a position to produce a lot of dot deliveries, that means the run rate would be would be mounting definitely. Going straight to the fieldsman and not for runs, unable to find a gap between the fieldsman. सुधीर, अगर एक्स्ट्रा रन भी आए लेकिन रन बैट से रेगुलर ना बने तो बल्लेबाज थोड़ा सा मायूस हो जाता है और कभी कभी आक्रामक प्रयास करने के कोशिश में विकेट भी गंवा देता है। तो रन भी तेज़ी के साथ आने चाहिए बैट से, जैसे एक्स्ट्रा के रूप में आते हैं। तो ओह, बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ स्टाइट पर ही गेंदबाजी, और कुल मिलाकर किफ़ायती गेंदबाजी कही जाएगी अगर एक्स्ट्रा को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो 5 ओवर के बाद 23 रन इंडियन कोबरास ने 5 ओवर में 34 रन बनाए थे पहले मैच में। यहाँ पर 5 ओवर में 23 रन, तो कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो करीब करीब 5 के आसपास का औसत पावर प्ले का, इतना ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है। आप मानेंगे इस बात को सुधीर? Yes, you are right that after 5 overs it is 23 for no loss. If we consider the run rate which is presently standing, then definitely one would say that it is reasonably good. But as far as the efforts on the part of the batsmen are concerned, then definitely you can see that they have contributed a little, because thanks to some wayward bowling on the part of the North Kings bowlers, British is on 7 and Vinay is on 5. But it is definitely clear that both these batsmen, they have applied themselves magnificently. Now that strong breeze you can see, an element of surprise in the form of a full toss, a scoring opportunity, but the advantage not taken by the batsman. आकाश है गेंदबाज, रितेश समय स्क्रीन पर। फील्डिंग में परिवर्तन, वाइड डीप मिड विकेट है, बाउंड्री लाइन के करीब भेज दिया गया है। मिड ऑफ की दिशा में खेला, जमीन के सहारे 1 रन। स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया नहीं है, 8 रन 18 गेंदों पर, 14 गेंदों पर 5 रन। कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर रितेश और विनय। अगर अतिरिक्त नहीं दिए होते तो इस समय जो स्थिति है नॉर्थ किंग की कुछ अलग ही होती। फिलहाल इस समय जोरदार अपील, और हालांकि बैट और पैड के बीच में काफी बड़ा गैप, अंदर की तरफ आई गेंद, क्लीन बोल्ड। और इस प्रकार मैंने कुछ ही देर पहले कहा कि जब रन बैट से रेगुलर ना आ रहे हो तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं दबाव महसूस करता है, और इस समय ये गेंद है, इसे इस प्रकार खेलना आवश्यक नहीं था, लेकिन दबाव गलती कर बैठे और 15 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए आकाश के द्वारा। विनय वापस जाते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर, तो विकेट लेने में कामयाब इस समय। हाई आर्म एक्शन
फ्लाइटेड बॉल और बिल्कुल गेंद की लाइन से हट गए, बिल्कुल हवा में छोड़ा। बहुत ही बढ़िया फ्लाइट का यहाँ पर उदाहरण, और जश्न मनाते हुए बड़ी विकेट जो साझेदारी बन रही थी, बढ़िया विकेट लेने में कामयाब इस समय 24 पर 1 नॉर्थ किंग। So the spin bowling getting the success, the first success in fact in North Kings first inning, but they are definitely under pressure, though the present run rate may be a little comfortable. They are having 9 wickets in hand. Of course, the advantage of the first power play is over now. No fielders anywhere near the batsman. All of them are away by at least 25 to 30 yards. Finding the gap between extra cover and long off, and an easy boundary for the batsman. You can know that great deal of power behind that shot, you can see. Ball from close to the stumps over the wicket, using his reach and driven very firmly to the extra cover boundary. 1 for 28. ऑप्शन के बाहर संभल कर खेला उसे डीप कवर पॉइंट की दिशा में, जो बाउंड्री लगी थी। इस इनिंग का सबसे बढ़िया शॉट देखने को मिला प्रवीण के द्वारा। 2 गेंदों पर 5 रन, अच्छी शुरुआत कही जाएगी प्रवीण के लिए। 29 पर 1, जबकि छठा ओवर चल रहा है। जिन दर्शकों ने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट को ऑन किया है, ये दूसरा मैच चल रहा है इंडियन प्रीमियर कॉर्पोरेट लीग सीजन 5 का, नॉर्थ किंग और साउथ ईगल्स के बीच में। नॉर्थ किंग के कप्तान रितेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अहमदाबाद नवरंगपुरा के सरदार पटेल स्टेडियम से आप इस मैच को देख रहे हैं। नॉर्थ किंग का बैटिंग कार्ड रितेश 8 रन बनाकर नॉट आउट। विनय बल्लेबाजी एकमात्र आउट हुए। आकाश ने क्लीन बोल्ड किया था, 15 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए। प्रवीण सिंह 5 रन पर नॉट आउट। 29 रनों में 11 रन अतिरिक्त, ये एक चिंता की बात साउथ ईगल्स के लिए। तो जी आप क्रिकेट से जो लगाओ इस समय, मैदान के अंदर भी क्रिकेट और मैदान के बाहर भी तो क्रिकेट का बुखार हर किसी में देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया सुधीर, क्या कहेंगे? And on both the occasions it was hit from the meat of the blade, making that sweet sound of that knock. This time going for 4 to the fine leg boundary. Because he was staying on the leg side. He was able to produce that beautiful angle of the ball. You can see going on his knee and making this shot. जी हाँ, बिल्कुल गेंद की लाइन इतनी ठीक नहीं थी। पहले ही भांप लिया था बल्लेबाज ने और सिर्फ उसे दिशा दी। अनु जोश नए गेंदबाज। 33 पर 1 प्रवीण सिंह आते ही आक्रामकता का परिचय देते हुए 4 गेंदों पर 9 रन। गेंद के मुकाबले ज़्यादा रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज है नॉर्थ किंग के। तो बढ़िया शुरुआत प्रवीण सिंह स्ट्राइक पर। जोश, ओ ये एक बार फिर यहाँ पर गलती, लेग स्टंप के बहुत ही ज़्यादा बाहर। जब भी गेंद लेग स्टंप्स के बाहर जाती है, जो फील्ड एम्पायर्स उन्हें कोई परेशानी इतनी महसूस नहीं करनी पड़ती है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। जोश अपना पहला ओवर डालते हुए, और कुल मिलाकर ठीक कही जाएगी ऑप्शन के बाहर। सिर्फ उसे बल्ले को तिरछा करते हुए खेला थर्ड मैन की दिशा में 1 रन। 7वां ओवर चल रहा है, 35 रन 1 विकेट नॉर्थ किंग। स्ट्राइक रेट काफ़ी बढ़िया, 5 गेंदों पर 10 रन प्रवीण, 19 गेंदों पर 8 रन रितेश।
One go for 4, 2 fielders chasing. And the right technique employed by both these batsmen, the right combination of defense and aggression. It was bowled from the center of the bowling crease. He had to just stretch himself for making this placement on the offside and caught the runs. 1 for 36 and Praveen is on strike. And when Ritesh has fallen back onto defense, it is the right strategy used by Praveen. He is looking out for runs. He's trying to find a gap between the fielders and has been very successful so far. तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए रन रेट के हिसाब से साउथ ईगल्स ने अच्छी वापसी की है। 7 ओवर के बाद 36 रन, एक समय 7 रन प्रति ओवर के साथ में खेल रहा था नॉर्थ किंग, लेकिन विकेट लिया, उसके साथ में अच्छी वापसी। रितेश 9 पर, प्रवीण 10 रन पर, और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी समझदारी। दूसरा तीसरा ओवर काफी बढ़िया रहा था, जहां पर अतिरिक्त रन आए थे। 12 रन थे 2 ओवर में, 3 ओवर में 20 रन। उसके बाद अब देखिए 4 ओवर में काफी बढ़िया वापसी की है साउथ ईगल्स ने, और विकेट भी एक लिया है। एक अच्छी निशानी कही जाएगी साउथ ईगल्स के लिए। This shows the fluctuation as far as the scoring pattern is concerned. The bowler shifting his line, concentrating on the leg stump, and called wide by the umpire. That means an additional opportunity for the batsman to score in the form of an additional delivery to play. Praveen is on strike. Trying to go for an aggressive looking shot, didn't get it properly because he was unable to face the pace and it was keeping low as well. सुधीर, देखा है रितेश को अवे फ्रॉम द बॉडी बहुत खेलते हैं। गेंद आती है तो वो पीछे हट जाते हैं और बाद में ड्राइव करने का प्रयास करते हैं। और फिलहाल ये फुल लेंथ गेंद, ओवर पिच बॉल खेला उसे मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन तेज मुस्तेज और फुर्तीले फील्डर। तो रितेश की हम बात कर रहे थे, ये जो स्थिति है उनकी, 21 गेंदों पर 20 गेंदों पर 9 रन, तो गेंद तक नहीं पहुंचते हैं, फुटवर्क इतना बढ़िया नहीं है और काफ़ी दूर से खेलने का प्रयास करते हुए अब तक दबाव महसूस कर रहे हैं रितेश, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के आसपास हो रही है। फिलहाल खूबसूरती के साथ खेला रितेश ने ऑन साइड पर, 1 रन जब तक विकेट कीपर के पास में गेंद आए। तो बैट और जो बॉडी है वो आपको गेंद तक लानी बेहद ज़रूरी है अगर आप उसे ऑन साइड या ऑफ साइड पर खेलते हैं तो, और वो एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। और ऐसा जो बॉडी लैंग्वेज हो, ऐसी टेक्निक जो हो, वो बल्लेबाज काफ़ी लंबी इनिंग खेल सकता है। फुल टॉस बॉल, सिर्फ उसे दिशा दी और तिलक रत्ने दिलशान का पल्लू स्ट्रोक और 4 रन, और ये T20 स्पेशल कहा जाता है फिलहाल इस फॉर्मेट में सुधीर। And Deepak, one can also say that a tennis shot in the game of cricket. यस, बिल्कुल सही, फुल टॉस और दिशा दी, फाइन लेग पर कोई फील्डर नहीं, और बहुमूल्य 4 रन रितेश के द्वारा पहली बार। हालांकि प्रवीण ने समय स्ट्राइक पर 10 गेंदों पर 15 रन आते ही अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का परिचय देते हुए, और उससे हौसला बढ़ता है जब कोई बल्लेबाज दबाव में हो दूसरे एंड पर। तो देखना है कि प्रवीण की इस बल्लेबाजी को देखते हुए उसमें से क्या सीखेंगे रितेश। लेकिन इस समय एक अतिरिक्त रन, आर गुप्ता और सिद्धार्थ शर्मा है फील्ड एम्पायर। 45 पर 1 नॉर्थ किंग, बढ़िया गेंद, बढ़िया फ्लाइटेड विकेट के ठीक सामने, मिडल और ऑफ पर ये गेंद, लेकिन देखा फील्डर दूर है, पावर प्ले पूरा हो चुका है, धीरे से पुश कर दिया। जब रन बाउंड्री और
छक्के के रूप में नहीं आ रहे हो, सिंगल्स डबल्स आप अगर लेते हैं फील्डर को देखते हुए, तो वहाँ पर भी जो गेंदबाज है उस पर भी दबाव बनता है सुधीर। Taken on the half volley and driven to mid wicket. A single in the process. So after 8 overs, 47 for 1. Ritesh is 11 of 22 and Praveen is not out on 16 from 11 deliveries. This very clearly indicates the type of approach which has been employed by these two batsmen. And after 8 overs, there is that innovation break after 8 overs, and North Kings, after winning the toss, deciding to bat first. The man out was Vinay when he was clean bowled by N. Akash for 5 from 15 deliveries. Ritesh is on 11 and the bowling figures. The only successful bowler being Akash, 1 for 17, and otherwise Naveen, Sai, Praveen and Anu Jose have remained wicketless so far. There are 15 extras in this score. The first over produced 15 runs, the highest number of scores. The fifth one was a maiden, and the remaining overs they remained in between. So this is the fluctuation you can have as far as the idea is concerned, as far as the pattern of scoring is concerned. Maximum number of runs 15 in the first over, and fifth over was a maiden one. पहला विकेट जो गिरा था विनय का 24 रन पर गिरा था। उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 23 रन की साझेदारी बन चुकी है। बीच बीच में कई बार बढ़िया स्ट्रोक देखने को भी मिले थे रितेश और विनय के द्वारा, लेकिन कुल मिलाकर कुछ पिछले ओवर में खराब गेंदें थी जहां से अतिरिक्त बाउंड्री थी। उसके अलावा कोई खास विशेष प्रभावशाली बैटिंग नहीं रही है एक प्रवीण को अगर हम देखते हैं तो, लेकिन 23 रन की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए बन चुकी है। 1 ओवर 7 रन अनु जोस। रितेश कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा अपना भी और अपने टीम का भी टोटल बढ़ाया जाए। 11 रनों पर नॉट आउट, 22 गेंदों का सामना किया। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल उछाल नहीं लेकिन संभल कर खेला उसे ऑन साइड पर। फील्डर काफ़ी दूर थे बाउंड्री लाइन के करीब, और 1 रन इत्मीनान के साथ। अंतिम क्षण तक जांचा परखा, फिर कलायों का इस्तेमाल करते हुए इसे खेला ऑन साइड पर। सिर्फ अपने आप से और विकेट से गेंद को दूर धकेला इस समय रितेश ने। वो बहुत ही बढ़िया गेंद। इस गेंदबाज की अगर हम बात करें तो लंबे कद के हैं, साथ में उनका जो हाथ है वो काफ़ी ऊंचा चला जाता है, हाई आर्म एक्शन जिसे हम कहते हैं, और हवा में ही गेंद को छोड़ते हैं। तो बल्लेबाज जो होते हैं सुधीर, उनको गेंद की लाइन और लेंथ को समझना, बॉलर की जो बॉडी लैंग्वेज है उसे समझना इतना आसान नहीं होता है। देखा होगा आपने कई साल पहले 70-80 के दशक में वेस्ट इंडीज़ के जो ऊंचे कद के गेंदबाज थे, हाथ काफ़ी ऊंचा जाता था, हवा में गेंद को छोड़ते थे, तो बल्लेबाज के लिए काफ़ी परेशानियां ही पेश करते थे। And that was a beautiful outswinger produced by the bowler. The 9th over is in progress. Very intelligent piece of bowling. On the previous occasion, there was that seam movement, and the ball, after pitching it outside the off stump, moving away from the batsman, and this time he got the ball in to the batsman, keeping the batsman in a guessing stage. This time shouldering his arm, Ritesh showing that same tendency and determination to stay at the crease for as long as possible, to show that discipline, not to go for an adventurous looking shot.
and at the same time he is following the basics as well of the game, showing the full face of the bat to the bowler and meeting it from the meat of the blade as well, to ensure that the ball doesn't go in the air after it is hit from his bat. जी हाँ, बिल्कुल सही और काफ़ी बढ़िया ओवर रहा साउथ ईगल्स की ओर से। 12 पर रितेश, 17 पर प्रवीण, 9 ओवर के बाद 49 रन। कुल मिलाकर बढ़िया साझेदारी बन रही है दूसरे विकेट के लिए, क्योंकि 24 पर पहला विकेट गिरा था। 25 रन बना लिए हैं इन दोनों ने। और फिलहाल बल्लेबाज से काफ़ी दूर ये गेंद, और निश्चित रूप से सजा होगी यहाँ पर गेंदबाज को। और जी हाँ, वाइट बॉल तो आज अतिरिक्त पीछा नहीं छोड़ रहा है साउथ ईगल्स का, और इस 1 रन के साथ में 50 रन भी पूरे हो चुके हैं 9 ओवर में नॉर्थ किंग के। बीच बीच में कई बार उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक गेंद डालते हैं साउथ ईगल्स के गेंदबाज। वहाँ पे बल्लेबाज थोड़ा सा दबाव महसूस करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो है उस पर कहीं ना कहीं तो अंकुश लगाना ही होगा साउथ ईगल्स के गेंदबाजों को, अन्यथा इस प्रकार एक विशाल स्कोर बना सकता है नॉर्थ किंग। ओ, बहुत ही बढ़िया गेंद, रूम का कोई मौका नहीं। स्क्वायर कट करना चाहते थे प्रवीण। फिलहाल 1 रन। शुरुआती पारी की अगर हम बात करें, प्रवीण ने कम गेंदों पर ज़्यादा रन बनाए थे, लेकिन अब यहाँ पर साउथ ईगल्स ने भी प्रवीण पर नियंत्रण बना लिया है। 16 गेंदों पर 18 रन। ये एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी साउथ ईगल्स के लिए। Because Deepak, they have been able to bring that variation into the bowling very intentionally. You can see the seam movement on both ways, and on the part of the spinner you can see that an attempt is made to change the length and to induce the batsman to go for the shots on the offside, and sometimes not providing that width and concentrating in line of the stumps. काफ़ी ज़बरदस्त अपील, लेकिन इस अपील ने इतना प्रभावित नहीं किया एम्पायर को। और जहाँ तक एम्पायर स्टैंडर्ड की बात करें, पिछले कई आईपीसीएल से हम देख रहे हैं जो एम्पायरिंग स्टैंडर्ड है काफ़ी बढ़िया है। ये बिल्कुल गेंद लेग स्टंप के पास, कोई मौका नहीं। और इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू के साथ कैसे सहमति जताए एम्पायर्स, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड फील्डिंग देखने को मिली अब तक पिछले कई एडिशन में आईपीसीएल के। वो अच्छी गेंद, लेकिन उसे संभल कर खेलना ही मुनासिब समझा। 10 ओवर के बाद 51 रन, जहां पर एक समय रन रेट 8, 9, 7 था, अब रन रेट आकर घट गया है 5 पर। पहला ओवर 15 रन, उसके बाद अच्छी वापसी की थी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें ओवर में। 6ठे, 7वें और 8वें ओवर में बेहतरीन रन बनाए थे नॉर्थ किंग ने। उसके बाद पिछले ओवर में यानी कि 9वें ओवर में 2 रन, और कुल मिलाकर 10 ओवर के बाद 51 रन, 1 विकेट। नॉर्थ किंग टॉस जीतने के बाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए। और अब कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन होता हुआ प्रशांत शेंगर के रूप में। धन्यवाद दीपक। आईपीसीएल सीजन 2 का आज पहला दिन और दूसरा मुकाबला इस समय चल रहा है। आमने सामने नॉर्थ किंग्स और साउथ ईगल्स। टॉस जीता नॉर्थ किंग्स के कप्तान रितेश शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 10 ओवर के खेल में 51 रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके हैं।
ठीक ठाक शुरुआत कही जाएगी। 10 ओवर 53 रन। इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गैप में गेंद को भेजा 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, पूरी तरीके से लंबाई का फायदा लिया और गेंद को भेजा वाइडिश मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, देख पाएंगे किस तरीके से। बढ़िया इनसाइड आउट स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर। 57 स्कोर पहुंचा। रितेश पहुंच गए हैं इस चौके की मदद से 16 पर। ठीक ठाक बल्लेबाजी रही, केवल एक विकेट गंवाया विनय के रूप में, जिन्हें आकाश सिंह ने आउट किया था। तब 24 रन स्कोरबोर्ड पर थे, लेकिन उसके बाद से एक और अच्छी साझेदारी, 34 रन जोड़े जा चुके हैं दूसरे विकेट के लिए। और जब आप विकेट पर रहा करते हैं, समय बिता लिया करते हैं, थोड़े से अभ्यस्त हो जाया करते हैं, तो मन के अनुसार खेल सकते हैं। पिछला रन बिल्कुल उसी तरीके से देखने को मिला। प्रवीण चौहान ने बहुत आखिरी समय पर गेंद को गाइड किया, कट किया और आखिरकार 30 दौड़ लगाकर रन पूरा किया। देखा फील्डर थोड़ी सी दूरी पर है, सॉफ्ट हैंड से गेंद को धकेला और उसके बाद रन पूरा किया। तो रितेश और प्रवीण सेट हो चुके हैं आवश्यकता के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि इस बार थोड़ा सा आगे निकलते देख के गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो किया, गेंद की लंबाई में भी परिवर्तन किया। लेकिन आप अभ्यस्त हो चुके हैं, आपने समय बिताया है विकेट पर, तो आप अपने मन के अनुसार खेल सकते हैं। तत्काल अपने आप को परिवर्तित किया, स्ट्रोक को परिवर्तित किया और 1 रन हासिल किया। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में प्रफुल्ल आ चुके हैं, प्रफुल्ल वैद्य। प्रफुल्ल, आपका स्वागत है और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। Thank you, Prashant. So at the moment the score is 60 for 1. We are in the 11th over, and those 60 runs are scored despite that maiden over which was bowled during the power play, and when the power play was completed the score was 23. In first 5 overs they had scored 23, and at the moment after 11 overs the score is 60, and they have lost just 1 wicket. There is plenty of batting to come. They can definitely expect 160 plus in that case. But as we have seen in the earlier match as well, 1 or 2 quick wickets can change the complexion of the game. And here is a scorecard for you. Ritesh is batting with 18, has placed 32 deliveries. Vinay was bowled by Akash for 5. Praveen is batting with 19. 11 overs completed. The score is 60. And here is the graph so far as the run rate is concerned. In first over as many as 15 runs when scored. 60 for 1. Oh, that was outside the leg stick. And they have leisurely crossed over for that single. That was incidentally a wide as well. Ritesh is batting with 18. Praveen is batting with 19 of 19 deliveries. Ritesh has been more seated, more quiet. He is trying to consolidate the position, not going for big hits. The score is 62. Oh, that was well outside the off stick. He wanted to have a wild swing, lucky not to get an edge. The wicketkeeper collected. There are 5-4 combination, 5 on the off and 4 on the on. That was a good ball indeed, played defensively, not for runs. Both the batsmen at the wicket are trying to consolidate the position of the team after losing their first wicket when the score was 24, and that wicket was lost in the 6th over. To be more precise, it was the third ball of the 6th over. That was a good ball indeed. But no damage done, no run scored. Praveen is on strike. He is batting with 19 of 21 deliveries. He has been more aggressive of the two. Oh, that's the fall of wicket. That's the fall of wicket. He missed the line completely. And that's the fall of wicket number 2. And the position is 62 for 2.
Prashant, you were during the toss, you were present when the toss was going on. They must have talked about the strategy that is to be employed, or rather the reason why they wanted to bat first. Can you tell something regarding that? 19 रन बनाकर प्रवीण आउट हुए। देखिए किस तरीके से विकेट हासिल किया आकाश सिंह ने। बैट और पैड के बीच में से जगह खोजी, गेंद ने विकेट से जाकर मिली। एक बार फिर एक और कोण से आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बीट हुए और इस तरीके से कामयाबी मिली आकाश सिंह को। आकाश को दूसरा विकेट मिला। पहला विकेट उन्होंने विनय को आउट करते हुए हासिल किया था। दूसरी कामयाबी भी उनके ही हिस्से में आई। मुसीबत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब आपका सेट बैट्समैन आउट होता है। शुरुआत में अगर आप आउट होते हैं तो इतना बड़ा अपराध नहीं होता। हालांकि आउट होना निश्चित रूप से टीम के साथ न्याय नहीं हो पाता, लेकिन सेट होने के बाद आपने अगर विकेट गंवाया है तो निश्चित रूप से ये मुश्किलों भरी बात रहा करती है टीम के लिए। बहरहाल दूसरा खामियाजा, दूसरा नुकसान भुगता है इस समय नॉर्थ किंग्स ने। टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी कर रहा है नॉर्थ किंग्स का दल। आईपीसीएल सीजन 5 के इस अंक में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। आकाश सिंह कामयाब गेंदबाज, 2 विकेट उनके हिस्से में आए हैं और नए बैट्समैन मैदान पर पहुंचे हैं। देखना होगा किस तरीके से वे बल्लेबाजी करते हैं। कौन है नया बैट्समैन? सुमित चावला आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये देखिए किस तरीके से बाउंड्री लाइन पर 2 फील्डर मौजूद हैं, लॉन्ग ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सुमित। रितेश एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, टीम के कप्तान, लेकिन गेंदें उन्होंने खासी ली हैं। 32 गेंदों पर 18 रन, बिल्कुल विपरीत समीकरण होने चाहिए। 32 रन 18 गेंदों पर बनने चाहिए T20 के फॉर्मेट में। इस बार दिशा थोड़े से भटके, लेकिन दिक्कत नहीं है। आपने 2 विकेट हासिल किए हैं। अपनी तरफ से जो क्षति, जो काम आपको करना चाहिए था वो आपने कर लिया है अपनी टीम के लिए। आप और बेहतर करेंगे, वो बोनस होगा टीम के लिए। इस बार गेंद की प्रतीक्षा की, टर्न करने की कोशिश, अंपायर के संकेत की प्रतीक्षा करनी होगी। बैट का संपर्क लिया है, अंपायर की तरफ से कोई संकेत नहीं है। तो ओवर पूरा हुआ, 12 ओवर का खेल पूरा हुआ। सफल ओवर आकाश सिंह ने पूरा किया। आकाश सिंह ने बढ़िया गेंदबाजी की है। हमारे ऑफिशियल जो स्कोरर हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, राहुल शर्मा और मिलिंद गोरे से, कि आकाश का बॉलिंग एनालिसिस क्या रहा है। ये विकेट देखिए किस तरीके से गिरे हैं। पहला विकेट आकाश की ही गेंद पर कामयाबी हासिल की और ये पिछला विकेट। दोनों कामयाबियां आकाश को मिली। सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने अंदाज में। 4 ओवर की गेंदबाजी की है, 20 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल की हैं आकाश सिंह ने। नया ओवर, पहली गेंद ड्राइव किया गेंद को और जैसे ही फंबल हुआ दूसरे रन के लिए पलटे। ये एक अच्छा तरीका होता है प्रफुल्ल, आप गेंद पर निगाहें रखें, लगातार प्रतीक्षा करें। अगर फील्डर कोई गलती करता है तो अवसर निकालें दूसरे रन के लिए। So the score is 65 for 2. They had lost the wicket, but at the same time they will try to accelerate the run rate. This time he has stuck it on the onside and leisurely crossed over for a single before the fielder from mid wicket comes and collects the ball. So Ritesh with that single moves to 21, who opened the innings, is still there. He has faced so far 34 balls, which includes the first power play as well. He was there in the first power play because he opened the innings, and Sumit is yet to open his account. He has faced just 2 balls. He is getting ready to face. That was well outside the leg stick, and umpire has no hesitation in calling it a wide. So one more in form of an extra, and with that single the score moves to 67. 67 for 2. We are in the 13th over. North King, after winning the toss, has preferred to bat first, and that means they have preferred to set the target for the opponents, and that target must not be less than 160, because the asking rate below 8 runs in 20 overs on this particular ground and this beautiful wicket
is difficult to be defended if it is less than 160. Because all the professional cricketers, they are well groomed rather. They may not be national cricketers, they may not be international cricketers, but they are having enthusiasm, they are having the spirit, they want to prove their mettle, and that's what they are doing. Then that's why this tournament is organized, and that beautiful six. बेहतरीन स्ट्रोक, आपने गेंद का पूरी तरीके से दोहन किया है। सबसे ज्यादा रन हासिल किए पिछली गेंद पर, देखिए किस तरीके से आगे निकला, इनसाइड आउट गेंद को खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हालांकि कोशिश की गई क्षेत्र रक्षक के द्वारा, लेकिन हद से बाहर, गेंद बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार बाएं तरफ बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लेकिन दूसरे रन की दौड़ पूरी की। रितेश बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, गियर चेंज किया है उन्होंने, पहले धीमी बल्लेबाजी और अब स्पीड पकड़ी है। 13वें ओवर में 76 रन इतने बुरे नहीं हैं। अगर अब आपने स्कोर गति को बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि विकेट आपने सिर्फ 2 गंवाए हैं। कई टीमों की ये भी नीति रहती है, आप विकेट सुरक्षित करें और आखिरी अवसर पर, खासतौर से 10 ओवर के बाद, आप एक्सीलरेटर बढ़ाएं और गति को तेज करें। But in that case, Prashant, in earlier match we have seen the result. Oh, but here is the once more one wicket has fallen, and that's the thing that the batting side captain would be worried about. They have lost the wicket at regular intervals. Of course, runs were coming. 13 overs completed. The run rate at around 6 runs per over at the moment. 7 overs to be bowled and 7 wickets in hand. Now it is to be seen how they deploy, how they employ, or what will be their strategy and what will be their innovative ideas in that case. Because the batting side, it seems that is running sort of ideas at this moment, that they will have to keep the wickets intact. That is the most important thing. बढ़िया कामयाबी हासिल हुई, देखिए किस तरीके से विकेट हासिल किया, कदम बाहर निकाले, लाइन छू के विकेट से जाकर गेंद मिली। कई बार प्रफुल्ल कमेंटेटर्स की भी नजर लग जाया करती है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर पहले हम तारीफ कर रहे थे रितेश के तौर तरीके की, कैसे उन्होंने एक्सेलेरेटर चेंज किया और फिर रन बनाने प्रारंभ किए। हालांकि कई बार गलती हो जाया करती है, लेकिन रितेश ने ठीक ठाक काम किया अपनी टीम के लिए। कई बार किस्मत आपका साथ नहीं देती है, इस बार गलती कर बैठे, और क्रिकेट में गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है, खासतौर से बल्लेबाजी करते समय। केवल एक गेंद आपकी पारी को संक्षिप्त कर दिया करती है। Yes, at the end of 13 overs, the score is 76 for 3. Now the new batsman is in, and he will have to settle himself and then go for runs as well. But one thing is important so far as this match is concerned, Prashant, that it's going to be very, very keen contest, and it's going to be Srinu. Oh, that ball is placed just for a single at deep is cover rather, or rather the third man all. He is covering that entire area. The score, Basim is yet to open his account, Sumit is on 1, so 2 new batsmen are in the middle, and at the moment the score is 77. After winning the toss and preferring to bat first, that means after winning the toss and preferring to put a handsome total on the board. That was well outside the off stick, he wanted to play it somewhere in the vacant gully area, didn't succeed. No run scored, no damage done. This is the IPCL Season 5 being organized at Sardar Patel Stadium, Ahmedabad. At the moment, out boundaries are coming, but there are no flurry of strokes, and the scoreboard is not moving as fast as the batting captain would have preferred to. The score is 79. We are in the 14th over. 2 batsmen at the wicket are Basim and Sumit. Both are new on the wicket. Slight adjustment on the field.
This time he has placed it somewhere in the vacant area. The good speeds of fielding there. It was an acrobatic fielding, Prashant. He dived to his right and neatly collected the ball. But that was a full butted stroke, so that ball travelled very fast. That was a valiant effort and he has succeeded in doing that. And this is the thing that is being seen in this tournament. This time he finds the gap, but they will have to be happy with just a single. We are in the 14th over. Left and right combination on the field. Umpires are also changing their positions. And so is the case with fielding side. At the moment the score is 80. This time once again he has played somewhere in the third man area and leisurely crossed over for a single. With that single, the score moves to 81. And there is some adjustment on the field. They are crossing over. The man from deep third man is coming on the on side. सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद का खूबसूरत स्टेडियम। हालांकि अहमदाबाद में एक और खूबसूरत स्टेडियम मोटेरा के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ अब अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुआ करते हैं। लेकिन इस स्टेडियम से भी तमाम सारी यादें जुड़ी हुई हैं। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 15वां ओवर। पहली गेंद स्टंप के बाहर और लेग स्टंप के बाहर अंपायर बहुत कठोर हुआ करते हैं। वाइट का संकेत। एक बार फिर लेग स्टंप पर ये गेंद खेलने की कोशिश की। देखना है, पैड से गेंद ने संपर्क किया, पैड से संपर्क किया। अंपायर गुप्ता ने लेग बाई का इशारा किया। प्रशांत हैं गेंदबाज और इस बार लिफ्ट किया है गेंद को। देखना है क्षेत्र रक्षक, लेकिन क्रॉस किया गेंद ने 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार बहुत जल्दी अपने आप को स्ट्रोक के लिए तैयार किया, पिच तक पहुंचे, लिफ्ट किया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। आकर्षक स्ट्रोक प्रफुल्ल। Yes, definitely we will find some stroke now. It seems that they are previewing regarding the power play, because power play is to be implemented from after 15th over, and we are in the 15th over at the moment, of course. And the score is 89. बल्लेबाज सुमित, जो कुछ देर पहले ही बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। 90 रन 3 विकेट पर। इस बार सीधा निशाना स्टंप पर। अंपायर का संकेत, उंगली आसमान की तरफ। एक और कामयाबी, एक और सफलता। सफलता के घोड़े पर सवार है प्रशांत। पहले विकेट हासिल किया, जमे जमाए बल्लेबाज रितेश को बोल्ड आउट किया। इस बार परेशानियां पैदा की बल्लेबाजों के लिए और आखिरकार रन आउट हासिल किया। आसान नहीं होता। आप बॉल को गैदर करें, पलटें और विकेट पर निशाना साधें। बल्लेबाज जिस तेजी के साथ रन के लिए बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ आप देख पाएंगे। सुमित रन आउट हुए, नॉर्थ किंग्स के बल्लेबाज। केवल 4 रन उन्होंने बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। आउट कैसे हुए ये देखने लायक रहेगा। आप देखिए आपके स्क्रीन पर, हल्के से गेंद को खेला, सॉफ्ट हैंड से बाएं हाथ से गेंद को पकड़ा और उसके बाद निशाना साधा स्टंप पर। शानदार तरीका और पूरा दोहन किया अपनी चपलता और फुर्ती का गेंदबाज प्रशांत ने। बढ़िया विकेट प्रफुल्ल। Yes, and that was. I mean, it seems that he was expecting this type of a stroke at him, and it was thrown in one action only. He collected the ball and threw it at the wicket, and the batsman was nowhere in the picture in that case. So they had lost their vital wicket, and the score is 90 for 4. Their top batsmen are back into the pavilion. We are in the 15th over. This time he has played it. There was no movement, and there was slight misfield, and they have crossed over for 2. They have paid the penalty. The fielding side has paid the penalty for that misfield, and one more in form of bonus rather
and the score moves to 92. Fielding side can't afford to bowl wilds, no balls and such extra runs in form of overthrows. But that is how cricket is being played. That is all part and parcel of the game. That is bound to happen, and that's why it's known as cricket of uncertainty, game of uncertainty. But at the moment, the score is 92 for 4. We are in the 15th over. After this over, power play will start, and during which only 2 fielders will be posted outside the circle as per the playing conditions. तो 15 ओवर का खेल पूरा हुआ। 15 ओवर के बाद स्कोर है 92 रन 4 विकेट पर। अब यहां से 5 ओवर पावर प्ले के रहेंगे, तो ठीक ठाक रन बनाए गए हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। देखने वाली बात रहेगी आखिरी पावर प्ले का इस्तेमाल किस तरीके से नॉर्थ किंग्स के बल्लेबाज कर पाते हैं। फिलहाल वासिम, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है, और दूसरी तरफ उनके जो साथी बल्लेबाज हैं वो भी अभी पहुंचे हैं। और ये देखिए किस तरीके से रन बने। पहले ओवर में 15 रन, उसके बाद थोड़ा सा संक्षिप्त खामोश बल्लेबाजी की गई। 8वें ओवर में 11 रन, लेकिन आखिरी 2 ओवर में बेहतरीन रन के साथ वापसी की है बल्लेबाजों ने। तो 13 और 12 रन के 2 ओवर बेहतर काम करके गए हैं नॉर्थ किंग्स के लिए। 15 ओवर 93 रन 4 विकेट। अब गेंदबाजी के लिए गणेश आए हैं, साई गणेश टीम के कप्तान। और धीमी गति की गेंद, और जब गेंदबाज तेज गति के साथ दौड़कर आता है गेंद फेंकने के लिए और उसी एक्शन में गति धीमी करके गेंद फेंकता है, तो बल्लेबाज के लिए चौंकने के अवसर पैदा हुआ करते हैं। ये देखिए ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण, 3 फील्डर ऑन साइड पर, केवल 2 फील्डर आप बाउंड्री लाइन के बाहर रख सकते हैं। तो एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट, ये 2 फील्डर रखे हैं बाउंड्री लाइन पर, जबकि बाकी सभी फील्डर 7 फील्डर इस समय ऑफ साइड में हैं, 6 फील्डर ऑफ साइड में हैं। साई गणेश शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर रखा हुआ है, स्पेशली थोड़ा सा भी अपिश स्ट्रोक उसे लपकने के लिए। एक स्लिप, डीपिश गली, पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक कवर और मिड ऑफ, ये ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। ये है साई गणेश। आज टॉस जरूर गंवाया, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की। शुरुआत में बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया, लेकिन पिछले 2 ओवर जो जैसा कि आपको ग्राफ के जरिए बताया गया था, बेहतर रहे। इस बार ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर गेंद फील्ड हुई और बासिम ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की है। 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इस बार जीवन दान मिला। विकेट कीपर गेंद को सही तरीके से जज नहीं कर पाए। गेंद निश्चित रूप से उनके रडार में थी, वे गेंद को लपक सकते थे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी देरी और अवसर हाथ से निकला। 100 रन पूरे हुए इस चौके की मदद से। So at the end of 16th over, the score is 100. 100 is the score, and this is the power play in operation. This is the stroke that was missed by the wicketkeeper. That took an outer edge and went between first slip and the wicketkeeper. Wicketkeeper could not latch on to it. Of course, it was not an easy catch, but at the same time, such catches are being taken at professional cricket. So now strategy is being adapted by them, and they will try to find out some innovative ideas in that case, and they will plan out how to get rid of this new batsman who comes in. At the end of 16 overs, the score is 100 for 4. Basim is batting with 21, and here is a scorecard for you. Ritesh bowled Parshvanath for 29, Vinay bowled Akash for 5, Praveen
bowled Akash for 19. Sumit was run out for 4. Basim is batting with 21. He has played 7 deliveries. He has given aggressive innings, and Rohit is not out on Sian. So now they will try to accelerate the run rate, because as per the playing conditions. नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, सफलता मिली, एक और विकेट, एक और कामयाबी आकाश सिंह को। Yeah, so this is the little stroke, and that has crossed the boundary. Now they have started to play some aggressive stroke, and this time on the offside, that was a beautiful cover drive, and that has crossed the rope. So now we are back to the game. The score is 100 for 4. Two fielders are posted outside the circle, 30-yard circle that is. One is at, he is coming closer to the batsman, and some adjustment is being made. He is at square leg, and the other one is at long off. This time he has missed it completely. The score is stationary at 100. We are in the 17th over. Basim is batting with 21. He has faced 9 deliveries, and Rohit has scored just 7 runs. This is a 20 overs match, and the second power play, that is batting power play, is on. The captain, winning the toss, has preferred to bat first. Must have planned to score 150 plus, but it seems that that's going to be a bit difficult, unless and until they go for big hits in the slog overs. Of course, there is plenty of batting to come. Still 6 batsmen are there, and we are in the 17th over, just 3 overs to go. So their strategy would be to go for big hits, and that's it. But it is straight to fielder, and with that single the score moves to 101. पारी का 17वां ओवर। ये देखिए किस तरीके से ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण लिया गया है बल्लेबाज के लिए। एक शॉर्ट कवर लगाया गया है स्पेशली। 2 फील्डर जो इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला, बॉलर के ठीक बगल से गेंद को निकाला। 1 रन मिलेगा। 30 यार्ड सर्कल के बाहर जो 2 फील्डर ले सकते हैं, एक थर्ड मैन और एक लॉन्ग ऑन। बाकी सभी फील्डर पावर प्ले के नियम के अनुसार सर्कल के अंदर। और इस बार बढ़िया गैप खोजा, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गली और पॉइंट के बीच में से गेंद को गाइड किया, तो बढ़िया स्ट्रोक, बुद्धिमानी भरा स्ट्रोक। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखिए किस तरीके से गेंद की प्रतीक्षा की और आखिरकार गेंद को डिस्पैच किया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, गैप के बीच में से। एक बार फिर देखिए इस कोण से, और पहले से ही तय हो चुका था जैसे ही गेंद ने फील्डर्स को क्लियर किया बाउंड्री के बाहर। तो 17 ओवर में 106 रन बनाए गए हैं। 4 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन 106 रन बना लिए गए हैं। कप्तान साई गणेश एक बार फिर आए हैं गेंदबाजी के लिए। सिंगल्स के लिए कोई आपत्ति नहीं है साउथ ईगल्स को। सिंगल्स की आजादी है, बाउंड्री नहीं मिलनी चाहिए। 17वें गेंद ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका लगा। यहां से कुल 17 गेंदें बचती हैं, और इस बार गलती कर बैठे, आसानी के साथ पुल किया, गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उछाला 6 रनों के लिए।
So with that 6, the score moves to 100 and now the batsman has tried to accelerate the run rate, and definitely they'll go for big hits like this. They won't mind lofting the stroke because there is plenty of batting to come for them. देखिए किस तरीके से फुल टॉस गेंद डाल बैठे थे, बहुत जल्दी अपने आप को स्ट्रोक के लिए तैयार किया, गेंद को उठाकर खेला मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की, बिल्कुल जरूरतों के मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे हैं बासिम। एक बार फिर गेंद बाउंड्री की तरफ बढ़ती हुई, अंपायर का संकेत, बल्ले का हिस्सा गेंद ने लिया तो बासिम के स्कोर में वृद्धि हुई। वे पहुंचे 36 पर, केवल 15 गेंदों पर ये रन बनाए हैं। देखिएगा पिछली बाउंड्री किस तरीके से हासिल की, बल्ले का हिस्सा गेंद ने लिया और विकेट कीपर को छोड़ती हुई गेंद पहुंची बाउंड्री के बाहर। आईपीसीएल सीजन 5 का ये दूसरा मैच है। कुल मिलाकर 8 टीमों के बीच संघर्ष। सुपर 4 के लिए टीमें संघर्ष करेंगी लीग मुकाबलों के जरिए और सुपर 4 से फिर फाइनलिस्ट तैयार होंगे। बढ़िया गेंदबाजी, पिछली गेंद पर जरूर एक तगड़ा 6 देखने को मिला, उसके बाद जो चौका मिला वो गेंदबाज के साथ न्याय नहीं था। सिंगल्स नहीं ले रहे हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात है। पिछली गेंद पर भी ऐसा हुआ था, रोहित ने सिंगल नहीं लिया था, इस बार भी यही देखने को मिला। 18 ओवर 117 रन 4 विकेट पर। Prashant, you must have discussed during the toss with both the captains. So what was that strategy and what did they plan out? What did they want to do rather? And particularly the captain winning the toss. And what was the opinion of the captain losing the toss? Here is a graph. The first over has been the most productive over in which 15 runs were scored. In the 8th over, 11 runs were scored. And in the 13th over, the 13 runs were scored. And in the 15th over, 12 runs were scored. In the last over, 11 runs were scored. So definitely they will try to accelerate the run rate now. Because just 2 overs are left. Plenty of batting to come. 117 on the board. आप पूछ रहे थे उनकी रणनीति के बारे में। दोनों ही टीमों के कप्तान का अपना अपना विश्वास था, नजरिया था। घास का फायदा उठाने की बात कर रहे थे साई गणेश अपने गेंदबाजों के जरिए, और दूसरी तरफ 150 के आसपास का टोटल बता रहे थे। अपनी तरफ से कोशिश की बात कर रहे थे बल्लेबाज और टीम के कप्तान रितेश शर्मा। तो अब 117 रन 4 विकेट पर बना लिए गए हैं। अगर 2 ओवर में कुछ और बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिले तो 130 के आसपास का स्कोर होगा। उससे आगे निकलता है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा टफ रहेगा। Okay, that's it. So that strategy, it will be around identical score of the first match in that case, because in the first match 128 runs were scored and the team batting second could not chase that target and they lost the match. Here at the moment the score is 118, and as you have very rightly pointed out, if they can score 130 plus or something like that, then that will be a competitive total. If they can score 150 plus, then they can have an edge over that. Once again, that all will depend upon the first power play of first 5 overs, because that has become very vital nowadays. प्रवीण आए हैं गेंदबाजी के लिए। बासिम स्ट्राइकिंग एंड पर। देखभाल कर बल्लेबाजी करते हुए किसी खराब गेंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां से केवल 10 गेंदें बाकी बचती हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के स्टंप बिखेरने की चेष्टा, लेकिन अपने आप को रोका। आपको स्ट्रोक के लिए जाना होगा, गेंद आपको आकर नहीं बताएगी कि आपको स्ट्रोक खेलना है, और बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक्स खेलना आसान नहीं होते। और बासिम को चाहिए कि आगे बढ़कर या गेंद पर प्लान करें स्ट्रोक के लिए। प्रवीण की तारीफ करनी होगी, बल्लेबाज पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की। इस बार कट किया गेंद को खूबसूरती के साथ, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
ऐसे ही गेंदों की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक और चौका बासिम की तरफ से, वे 40 पर पहुंचे। टीम का स्कोर 122 रन। They have meticulously followed your suggestion or advice, Prashant. It seems that he has stuck it and stuck it very nicely, found the gap and 4 more. So this is the thing that is expected now, because now they can afford to take chances also. There is plenty of batting to come, but so far as overs are concerned, they are running short of it. We are already in the 19th over and the score is 122 for 4. So they will definitely have to accelerate the run rate. Now they can take chances, they can go for lofted stroke, but it is the run that counts for them at this stage. They can become desperate as well. बिल्कुल सही बात आपने कही। इस ओवर की आखिरी गेंद केवल 5 रन आए हैं। चौथी गेंद पर चौका, पहली पर सिंगल। प्रवीण ने अच्छी गेंदबाजी की। एक चौके के बाद डॉट बॉल, वापसी का संकेत किया। वाइड की प्रतीक्षा कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉट बॉल, इस ओवर में 4 डॉट बॉल रही हैं। ये जब गेंदबाजी कर रही होगी नॉर्थ किंग्स की टीम, तब समझ में आएगी ये वाली बात कि डॉट बॉल क्या मैटर करती हैं, क्या मायने रखती हैं। 19 ओवर 122 रन 4 विकेट पर। Yes, you are absolutely right, Prashant. 5th over, that is the last over of first power play, was a maiden over, and 4 dot balls in 19th over speaks about the disciplined bowling of the fielding side. बिल्कुल सही बात आपने कही। और अब आखिरी 6 गेंदें, बहुत कुछ मैटर करेगा इन 6 गेंदों पर। साउथ ईगल्स के गेंदबाज चाहेंगे कम से कम रन बने, जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ किंग्स ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण और पहली गेंद सुरक्षात्मक तरीका, रवैया समझ में नहीं आया प्रफुल्ल। आपको स्ट्रोक के लिए जाना है और आप डिफेंस कर रहे हैं। There is no sense in keeping the wickets intact at this stage, so they'll have to go for big hits in that. But they are playing defensively. It's very surprising. I think there are no points for wickets, no? सिंगल्स के लिए निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है साउथ ईगल्स के गेंदबाजों को, लेकिन लंबे स्ट्रोक्स के लिए बल्लेबाज नहीं जा रहे हैं। ये अचरज भरी बात है। बहरहाल 123 रन 4 विकेट पर आखिरी 3 गेंदें। Now this time he has placed the ball and leisurely they have crossed over for a single, knowing fully well that there is no chance of second. So with that single, the score moves to 124. In the earlier match, 128 runs were scored. Now the interesting matter regarding this match is, will they be able to surpass that 128 at this stage? That is going to be very interesting. One more in form of an extra. The score, once again, a defensive stroke. It's very surprising. 125. This is going to be the last ball of the innings, provided no ball or no wide is bowled. So he has placed it on the onside. The fielder from long on is running and they have crossed over for an easy single. So with that single, the score moves to 126, and so the target is 127. In the earlier match, the target was 129, and now it is 127. 2 runs less than the earlier match. तो इस तरीके से 126 रन बनाए गए हैं 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर। यानी लक्ष्य जो निर्धारित हुआ है वो 127 रनों का हुआ है और बहुत कुछ हासिल किया साउथ ईगल्स के गेंदबाजों ने, उनके क्षेत्ररक्षकों ने। कप्तान ने बढ़िया काम किया, संक्षेप में पारी रखी। 126 रन बहुत बड़ा टोटल नहीं हुआ करते हैं जिसे चेज नहीं किया जा सके। हाइलाइट्स आप देख पाएंगे। पहला विकेट, पहली कामयाबी आकाश को मिली, बोल्ड आउट किया। एक बढ़िया ऑफ ड्राइव आपने देखा, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। पहला विकेट विनय के गिरने के बाद रितेश ने 29 रन की उपयोगी पारी खेली।
प्रवीण चौहान ने 19 रन बनाए। एक और बढ़िया स्ट्रोक, ये आकाश ने बढ़िया बोल्ड किया था, बिल्कुल बैट और पैड के बीच में से गेंद को निकालने में कामयाबी हासिल की थी। ये एक खूबसूरत स्ट्रोक रोप के ऊपर से 6 रनों के लिए। रितेश ने गियर चेंज किया था, लेकिन अगली ही गेंद पर बोल्ड आउट हुए थे। वापसी की थी गेंदबाज प्रशांत ने। और ये आखिरी विकेट था, रन आउट हुए थे। प्रशांत ने अपने एकाकी प्रयास के जरिए विकेट हासिल किया था। एज लगा गेंद बाउंड्री के बाहर, ये बहुत बढ़िया गाइड किया था। फील्डर स्तब्ध रहे, सिर्फ देखते रहे गेंद को। इनर एज, गेंद बाउंड्री के बाहर, विकेट के पीछे। तो कुल मिलाकर नपीतुली बल्लेबाजी देखने को मिली, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स भी देखने को मिले, बढ़िया क्षेत्ररक्षण भी देखने को मिला। ये देखिए किस तरीके से स्कोर बना ग्राफ के जरिए। पहले ओवर में 15 रन, और सबसे बढ़िया जो पहला ओवर रहा था, उसके बाद 13 रनों वाला ओवर, 13वां ओवर, 15वें ओवर में 12 रन आए, 18वें ओवर में 11 रन। उसके बाद कोई बड़े स्कोर देखने को नहीं मिले। कुल मिलाकर 126 रन। तो साउथ ईगल्स को चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 127 रन। तो कुछ देर का विराम आपको लिए चलते